नमस्कार, मैं हूं नलिनी मिश्रा और आप देख रहे हैं एमए लुधियाना। आज हम बात करेंगे प्रेरणा पीठ की। जी हाँ, प्रेरणा पीठ जो पिछले 9 सालों से लोगों को मानवता का धर्म और मानवता का पाठ सिखा रहा है। और साथ ही आज आपको बता दें कि उन्होंने 2 बुक है जो लॉन्च की है कक्षा 7वीं के लिए और 8वीं के लिए, और 100 स्कूलों में ये बुक्स को 20,000 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बच्चों का एग्ज़ाम भी लेंगे और साथ ही साथ बच्चों को प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बता दें कि ये जो 2 बुक है इन्हें आज लॉन्च किया गया है और हमारे साथ मौजूद हैं प्रेरणा पीठ के चेयरमैन, पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर एस जौहर, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं और आप सभी इनके बारे में तो जानते ही होंगे। तो सबसे पहले इनका स्वागत कर लेते हैं और इनसे बात करते हैं और ये जो 2 बुक है जो आज इन्होंने लॉन्च की इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है सर। जी हाँ मैं ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ। जी प्रेरणा पीठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? 9 साल हो गए लगातार प्रेरणा पीठ 9 सालों से कार्यरत है और इतनी अच्छी टीम है और सभी टीम मिलकर जो है बच्चों में जो भावी पीढ़ी में है वो मानवता का धर्म सिखाने के लिए लगातार प्रयासरत है। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਕਿੰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਿਵਿਕਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਐਥਿਕਸ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਕਿੰਗ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਕਸ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਰਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਥਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਔਰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਏ। ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੱਚਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਲਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਣਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਮੁਹੰਮਦੀਨ, ਉਹ ਜਦ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਕਸਮਾਂ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ देश का वफादार रहूँगा, माँ बाप की इज़्ज़त करूँगा, कोई बेईमानी नहीं करूँगा, ऐसी। मैं उन्होंने लिख के ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਾਲੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਕਸਮਾਂ ਚੱਕਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਦਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕਲੇਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਕਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਨੇ,
ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਰਿਡਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦੇਖਣ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਲੈਂਕ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 78 ਸਕੂਲ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ ਬਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5000, ਫਿਰ 15000, ਫਿਰ 15000, ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ 20000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ 20000 ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, 5000 ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ। ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈਡੀਆ ਸਾਡਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਈਡੀਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਥਿਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਐਮਫੇਸਿਸ ਸਾਡਾ ਐਥਿਕਸ 'ਤੇ ਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ 'ਤੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ये साडा ऑब्जेक्टिव है सारा। आप कहाँ कमी समझते हैं, क्योंकि आजकल जो एथिक्स है, मोरल वैल्यूज़ है, वो घरों में बच्चों को सिखाना चाहिए, स्कूलों में बच्चों को सिखाना चाहिए, लेकिन अब प्रेरणा पीठ जो है इस उद्देश्य के साथ बुक्स लिख रहा है, तो क्या लगता है कि अभी जैसे 20,000 बच्चों तक आप पहुँच रहे हैं, आगे क्या प्लानिंग रहेगी, कितने हो सकता है कि पूरे देश में? साडी जिन्नी की हिम्मत है उन्नी असीं करी जाने हैं। असीं थोड़े स्टार्ट किया, 20 तक पहुँच गए हैं। अगले साल इदू भी ज़्यादा करने की कोशिश करांगे। देखो असीं घर घर ते जा नहीं सकते, स्कूलों के बच्चों को टैकल कर सकते हैं, और असीं समझते हैं कि 7वीं और 8वीं जमात के बच्चे मैच्योर भी होंगे और सेंसिटिव भी होंगे, उन्होंने मोल्ड किया जा सकता। उदों उपर बंदा पक जाता 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, लेकिन ये जो लैवल है, इस लैवल पर बड़े आराम के नाल उन्होंने मोल्ड किया जा सकता। सो असीं कोशिश करते हैं साडी जिते पहुँचे। साडे नाल बड़े अच्छे अच्छे बंदे जुड़ी जाते हैं, हर साल नवे जुड़ते हैं। तो वो असीं जिन्ने कि साडे नाल बंदे जुड़ते उन्ने की साडी हिम्मत वधदी जाती है, उन्ने की वो पैसे साडे इकट्ठे हो जाते हैं। पैसे सानूं पता नहीं कित्थों आई जाते, आई जाते हैं। ये परमात्मा की दया, क्योंकि नीत साफ है। जी, तो हम देख रहे हैं कि आपने जैसे बच्चों के लिए बुक्स लिखी है, बच्चों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या पेरेंट्स के लिए भी कुछ आप बोलना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो अपने बच्चों को एथिक्स और वैल्यूज सिखा सके। देखो टाइम के नाल पेरेंट्स जेडे ना उन्हां दी रोल जिहड़ी आ ਉਹ उन्नी नहीं है जिन्नी स्कूलों वाली है। पेरेंट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ माँ बाप दोनों काम करते हैं मोस्टली, उन्होंने को बच्चों वास्ते टाइम ही है नहीं। अनफॉर्चुनेट पार्ट है ये, और ये साड़ी त्रासदी है कि बच्चों वास्ते टाइम नहीं। सो बच्चों जड़ा बच्चों के थ्रू असी पेरेंट्स को टैकल कर रहे हैं। जब जाएगा बच्चा तो क्या कर को किताबां ये जो स्कूल च ही रखनिया नहीं, घर ले जा सकते हैं, माँ बाप नाल गल कर सकते हैं। शायद माँ बाप से भी कोई असर हो जाए बच्चे का, क्या ये बंदा समझना। जी जी, थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे साथ मुख्य सलाहकार विजय सधीर भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आज मौजूद हैं और प्रेरणा पीठ से काफ़ी समय से भी जुड़े हुए हैं। सर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि हम एक मुख्य सलाहकार होने के नाते जो प्रेरणा पीठ ने ये कार्य शुरू किया है और बच्चों तक पहुँच की जा रही है, इसे किस प्रकार देखते हैं? ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੀਠ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ 7ਵੀਂ ਔਰ 8ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹਾਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਕੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਦਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ योगदान देवे ताकि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ तक ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ पहुँच जी। सकिए। थैंक यू वेरी मच। जी, अभी जैसे आपने बोला कि सरकार तक बात नहीं पहुंच रही है, तो बहुत बड़े हमारे पास एग्जाम्पल बैठे जो चेयरमैन है डॉक्टर एस एस जौहल पद्म भूषण से सम्मानित है, तो अगर इनकी कोई बात नहीं सुनेगा तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि सरकार तक तो आप बहुत ईजिली पहुंच सकते हैं इनके थ्रू। यही हमें इस बात का दुख है कि माननीय जौहल साहब हमारे साथ जुड़े हुए, द चेयरमैन ऑफ दिस NGO, उसके बावजूद भी सरकार के कारणों तक ये जूं नहीं रेंग रही है कि 9 साल से लगातार more than 60,000 students have been touched by this NGO and their notice must be taken by the government also of our efforts. Thank you very much. तो भी जैसे हमें विजय जी ने बताया कि जो प्रधान है वीरेंद्र मित्तल जी, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा पीठ को लेकर काफ़ी सजग है और प्रेरणा पीठ को जो है उसका संचालन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो सर, आप इस चीज़ को किस प्रकार देखते हैं कि बच्चों में एक मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स जो होने चाहिए, उसके लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं? जय माता दी। बेटे ऐसे है कि शुरू से ही एक बात पड़ी हुई है रामायण में, बिन सत्संग विवेक न होई। मुझे उसी बात से लग रहा है कि बच्चों से किसी तरह सत्संग करना चाहिए। मैं 86 से गायत्री परिवार के योग जुड़ा हुआ था, उन्होंने यही कहा है विचार क्रांति अभियान, उसको आगे करते रहे। कभी अच्छे से पूरे से हुआ, कभी कुछ साल हुआ ना हुआ। अब 2015 से डॉक्टर जौहल के नीचे एक संस्था बना के प्रेरणा पीठ हम काम कर रहे हैं, जिसमें कि हमें स्कूल के प्रिंसिपल टीचर्स ने बेइंतहा सहयोग दिया, नहीं तो शायद हम कर ही ना पाते कुछ। क्योंकि आजकल सभी कहते हैं हमें सब कुछ पता है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी स्कूल ने भी हमें इनकार नहीं की। चाहे वो सिख कम्युनिटी का स्कूल था, चाहे आर्य समाज का था, चाहे सनातन का था, चाहे क्रिश्चियंस का था, सभी स्कूलों ने हमें मतलब दिलो जान से एक्सेप्ट किया है और हमें काम करने का मौका दिया है। जी। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि डॉक्टर जौहल बार बार एक ही बात कहते हैं कि टीचर्स एम्प्लॉय नहीं है, टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स। हम बच्चों के साथ साथ टीचर्स के लिए 1.5 घंटे का सेमिनार भी कराते हैं। जब उनमें हम यही बात कहते हैं कि अगर टीचर्स देश के लिए, बच्चों के लिए लग जाए ना, जिस तरह उन्होंने IT सेक्टर में बेस्ट बच्चे पैदा कर दिए जो कि इस समय इंडिया के सारी दुनिया में रूल कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट, पेरेंट्स और मैनेजमेंट्स टीचर्स को ये बोल देना कि 10 विवेकानंद, 10 दयानंद सरस्वती पैदा करने हैं, वो ऐसे लोग पैदा कर सकते हैं कि सारी दुनिया की विचारधारा ही, जो सनातन धर्म का मूल मंत्र है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उसको वो चित्रात कर सकते हैं। दुनिया बहुत ही शांति प्रिय, प्रेम प्रिय बन सकती है, जिसमें भी सभी लोग बहुत शांति से रह सकते हैं। ये लक्ष्य, हम तो बहुत छोटा सा कार्य कर रहे हैं, ये सरकारों के लिए, यहाँ परमात्मा की इच्छा के बिना ऐसा कार्य हो नहीं सकता। आज हम 20,000 बच्चों को किताबें बांट रहे हैं, इसका भी बस मेन सपोर्ट क्या है, डॉक्टर जौहल, दुर्गा माता मंदिर का मेरे पे आशीर्वाद है और सभी लोग अच्छे अच्छे जुड़े हुए हैं। एक मैं, आप कह सकते हो, व्यापारी आदमी हूँ, बाकी सब पढ़े लिखे विद्वान लोग ही हैं। इनके आशीर्वाद से, डॉक्टर जौहल के नाम के कारण कोई प्रिंसिपल टीचर हमें इनकार ही नहीं करता। किताब पढ़ता है तो कहते हैं सब मानवता की बात कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। सो इसी तरह लगता है कि माँ ने चाहा तो और आगे बढ़ता जाएगा, टीचर्स के सेमिनार होते रहेंगे। इस बार कुंवर रंजन जी और सुरेश प्रभाकर जी ने एक और बीड़ा उठाया है, आनंदमय जीवन की ओर। इसका हमें एक सेमिनार भी किया है। आनंदमय जीवन के 4 पिलर्स इन्होंने बनाए हैं। पहला पिलर है हेल्दी बॉडी, सेकंड इज़ पॉजिटिव थिंकिंग, थर्ड इज़ कनेक्शन विद द गॉड, फोर्थ इज़ डूइंग सर्विस टू द सोसाइटी। इन 4 चीज़ों को लेकर हम आनंदमय जीवन की ओर के अलग अलग जगह लुधियाना में कम से कम 5 सेमिनार इस साल ज़रूर करेंगे, ताकि स्कूलों के साथ साथ हम आम आदमी के जीवन को भी थोड़ा बेटर करने का प्रयास करें। जय माता दी, जय माता दी।
प्रेरणा पीठ की सदस्य कमलेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक रिनोन एंकर भी हैं, और इनसे बातचीत करते हैं ये किस प्रकार देखती हैं जो प्रेरणा पीठ द्वारा कार्य किया जा रहा है, बच्चों तक पहुंचा जा रहा है, उन्हें मानवता का जो धर्म है वो पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। हेलो मैम, कैसे हैं? हेलो, नमस्कार। जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों तक पहुंचना, क्योंकि जिस प्रकार हमें एस जोहल जी ने बताया कि वो एक कच्ची मिट्टी होते हैं जिनको हम प्रॉपर एक जिस आकार में ढालें वो ढल जाते हैं। जी बिल्कुल, जो प्रेरणा पीठ की तरफ से ये जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय है। पिछले 9 साल से लगातार ये चलता आ रहा है, ये तो आपको भी मालूम है। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगी कि हम गाड़ी कोई भी बना लीजिए, चाहे वो गाड़ी ऑडी है या फिर वो मर्सिडीज़ है, लेकिन उस गाड़ी का एक फ़ीचर जब तक ब्रेक ना हो वो गाड़ी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसी तरह से कितनी भी सदियां गुजर जाए और पढ़ाई कितनी भी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की क्यों ना हो जाए, तो उसमें जो ब्रेक का काम है वो ब्रेक का काम मॉरल वैल्यूज़ करती हैं, वो नैतिक मूल्य करते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि कोई भी काल में, कोई भी वक्त में सच सच रहता है, झूठ झूठ रहता है, सही काम सही होता है, गलत काम गलत होता है। तो हमारी कोशिश है, हम जैसे बहुत सारे ज़िम्मेदार नागरिक हैं जो इस बात पे ट्रस्ट करके चलते हैं कि अर्निंग, लर्निंग और रिटर्निंग की सोसाइटी को वापस रिटर्न करना है। तो मुझे लगता है कि प्रेरणा पीठ जो ये कार्य कर रही है वो सोसाइटी को रिटर्न करने का एक बहुत अद्भुत ढंग है कि अगर हम आने वाले देश के लिए एक ऐसी पीढ़ी तैयार करें जो सिर्फ ज़िम्मेदार नागरिक ना बने, केवल वो परिवार के लिए ज़िम्मेदार ना हो, बल्कि वो जो नैतिक मूल्यों को साथ में लेते हुए, क्योंकि अगर नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज़ आपके साथ चलते हैं तो सिर्फ आप नहीं सुधरते, परिवार नहीं सुधरता, बल्कि समाज और राष्ट्र सब पे बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमारी कोशिश यही है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो उप प्रधान कर्नल अमरजीत सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, प्रेरणा पीठ से काफ़ी समय से ये भी जुड़े हुए हैं, जैसे 9 साल हो गए प्रेरणा पीठ को। तो ये आगे की जानकारी देंगे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि बच्चों में आप जो है उनके टेस्ट वगैरह भी लेते हैं, उन्हें बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब तक आपने कैसे देखा कि 1 साल में क्या रिस्पॉन्स रहा बच्चों की तरफ से, क्योंकि उन मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया पर उस चीज़ को एक्शन में करना वो बहुत बड़ी बात होती है। धन्यवाद मैडम। पिछले 3-4 सालों से टेस्ट हम ले रहे हैं उनमें, और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको इनकलकेट करने के बाद क्या रिज़ल्ट मिले हैं ग्राउंड के ऊपर वो वाकई ही आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि बच्चों में कुछ एक चीज़ों को पढ़ने की कमी है, वो बिल्कुल सिवाय किताबी ज्ञान के अलावा और कुछ ज्ञान ही नहीं लेना चाहते हैं। तो हमने इन पुस्तकों के माध्यम से कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी डाले हैं, जैसे अपनी गोल सेटिंग कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट को कैसे करना है, और भारतवर्ष की संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे अनेक हस्तियों के इसमें अंदर जिक्र किए हैं जिसके अंदर हम उनको पढ़ करके उनसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। तो जब बच्चे उनको पढ़ते हैं, और उसमें एक प्रश्न जैसे आया है कि आप सुखी परिवार के महत्व को आप क्या दायित्व देते हैं, तो वो अपने घर में बैठ कर के अपने माता पिता के साथ में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारे पाठ्यक्रमों के अंदर बिल्कुल इसके ऊपर चर्चा नहीं है। लेकिन ये चर्चा तभी की जा सकती है जब परिवार इकट्ठा बैठेगा, आपस में डिस्कस करेंगे शाम को, तो एक अच्छा सा सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार होगा, तब वो डिस्कस करके तब वो आंसर लिखते हैं। तो बच्चों की क्रिएटिविटी राइटिंग करने की क्षमता, वो सारी चीज़ें उभर के बाहर आती हैं। तो इसका असर कहीं ना कहीं, जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि 7वीं और 8वीं कक्षा एक ऐसी कक्षा होती है जहाँ पर के विद्यार्थियों के बीच को आप जिस तरह की भी तरफ ढालना चाहें उसको ढाल सकते हैं। तो जब ये बच्चों में इतनी कम उम्र के अंदर ये सारी अच्छी अच्छी बातें जब वो सुनते हैं, पढ़ते हैं और करते हैं ग्राउंड के ऊपर, एक बार नहीं कई बार करते हैं, और इसका जिक्र हम लोग उनकी मॉर्निंग असेंबली के माध्यम के भी उनके साथ बार बार चर्चा होती है, तो मैं समझता हूँ कि उनके अंदर वो चीज़ें डेवलप होती हैं। और आने वाले समय में हम समझते हैं कि आगे अगले 8-10 सालों में जब ये स्टूडेंट जो हैं वर्क फोर्स की तरह जाएंगे बाज़ार के अंदर, तो ये एक अच्छा नागरिक साबित होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। जी,
तो प्रेरणा पीठ की एक और सदस्य रेखा बांसल जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं, जो एक एनएलपी कोच हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो इनसे सबसे पहले बातचीत करते हैं और जानते हैं प्रेरणा पीठ से जुड़े इनको कितना टाइम हो गया, कैसा लग रहा है प्रेरणा पीठ से जुड़कर। हाँ हेलो मैम, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो नई नई जुड़ी हूँ। सबसे पहले मेरे संपर्क में वीरेंद्र मित्तल जी आए। वो भी, मैं लिंक्डइन पे पोस्ट डालती हूँ, वो भी डालते हैं, तो ये एक, अब मैं यूनिवर्स पे भी एक विश्वास करने लगी हूँ कुछ ज़्यादा ही, कि जैसे लाइक माइंडेड पीपल को मिलाते हैं, कि मेरा मकसद भी वही है, उनका मकसद भी वही है, तो क्यों ना एक टीम वर्क की तरह करें। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं ऐसे जुड़ी, इस प्रेरणा पीठ जैसे मंच से जुड़ी, जो बहुत ही प्रेरणादायी मंच है। और जिस तरह से वो बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों में एक नैतिक वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। और मैं भी कितने टाइम से, पिछले 2 सालों से मैं इस काम के लिए लगी हुई हूँ और मैं स्कूलों में जा रही हूँ। मेरा मिशन है कि मैं स्कूल के बच्चों में उनकी इमोशनल लर्निंग पे काम करूं, सोशल इमोशनल लर्निंग पे काम करना चाहती हूं और मैं कर रही हूं। इससे पहले भी मैं करीब 30 के करीब मोटिवेशनल सेशन दे चुकी हूं, उनको माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ करा चुकी हूं और मुझे उसका रिज़ल्ट भी नज़र आता है। जब से मैं इससे जुड़ी हुई हूं तो मुझे लग रहा है कि मेरा काम जो मैं करना चाहती हूं वो लगता है कि मैं अब 10x 100x कर सकती हूं। ये मेरा मकसद है। और जो मेरा एक और मकसद है कि मैं टीचर्स में काम करना चाहती हूँ, टीचर्स को ट्रेन करना चाहती हूँ कि कैसे क्लास में आप बिना उनको डांटे, विदाउट येलिंग, विदाउट स्कोल्डिंग, एक पॉजिटिव डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है। तो इसके लिए हमारी एक बातचीत भी हुई थी, तो उसमें बीएड कॉलेज को हमने टारगेट किया कि वहाँ जा कर के हम वहाँ टीचर ट्रेनिंग की बातें ही तो होती हैं, तो क्यों ना वहाँ पर हम अपना एम रखें, अपना पर्पस रखें, ताकि आगे आने वाले समय में कुछ और ही सीन हो, कुछ और ही बातें हों क्लास में। एक इस तरह का मुझे जो लगा, जो अच्छी बात लगी। एक सबसे ज़्यादा जो मैं आज इम्प्रेस हुई हूँ जॉल साहब की एक बात से, कि हम बच्चों के थ्रू शायद माता पिता को कहीं ना कहीं अपनी वैल्यूज़, अपनी नैतिक वैल्यूज़ देना चाहते हैं। आज के इस दौड़ भाग वाले और इतने फास्ट युग में, जो सोशल मीडिया का युग बन चुका है, एक टेक्नोलॉजी वर्ल्ड बन चुका है, तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग है पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, दोनों साइड है। तो कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज़ गुम हो गई हैं। उन वैल्यूज़ को दोबारा लाने के लिए, उनको पहचान कराने के लिए, उन वैल्यूज़ के लिए, तो हम बच्चों के थ्रू उन पेरेंट्स में क्रिएट करना चाह रहे हैं। बच्चों से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है माता पिता को अपनी वैल्यूज़ को पहचानना। ये हमारा मकसद है, टीचर्स के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू और बच्चों के थ्रू। यही 3 प्लेटफॉर्म्स पे मैं भी काम करती हूँ। तो एज़ पेरेंटिंग कोच मेरा भी ये एक मैसेज है सबके लिए। टीचर्स भी तो पेरेंट्स ही होते हैं, और स्कूल में तो बल्कि जब ज़्यादा टाइम देखें तो बच्चों का स्कूल में ही गुजरता है। पूरे दिन का जो अवेकनिंग टाइम है वो स्कूल में ही है। तो टीचर्स ही तो उनके पेरेंट्स है एक तरह से, मतलब टीचर्स ही तो उनकी मदर है, तो उनको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको एक वैल्यूज़ देना। तो यही मेरा मकसद है, और मैं जो सोसाइटी में ये पॉजिटिविटी बिखेरना चाहती हूँ, उस मकसद में मुझे लगता है कि अब मुझे और बल मिल रहा है ये पूरा करने का। थैंक यू सो मच। प्रेरणा पीठ को मैं बधाई भी देना चाहती हूँ। आज के दिन उन्होंने जिस तरह से ये बुक लॉन्च किया है, और इसके लिए मैं पूरे एफर्ट करूँगी, इसमें पूरा पार्टिसिपेट करूँगी। और जिस तरह से 15 की जगह कितने 20,000 स्टूडेंट्स तक पहुंचने की बातचीत चल रही है, तो मेरा पूरा योगदान रहेगा। मैं अश्योर करती हूँ ये प्रेरणा पीठ को। थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड फ्रॉम माय हार्ट। प्रेरणा पीठ के मेंबर सतीश सोई भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी बातचीत करते हैं और इनकी जो प्रेरणा है वो भी जानते हैं कि प्रेरणा पीठ से जुड़े हैं। तो प्रेरणा पीठ से जुड़े हुए आपको कितना समय हो गया और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आप प्रेरणा पीठ से जुड़े और साथ में बच्चों को जो है वो नैतिक वैल्यूज़ सिखाएं? ठीक है, मैं शुरू से ही पिछले 9 साल से प्रेरणा पीठ से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं प्रेरणा पीठ का सभी मेंबर्स का सौभाग्य अपील करता हूँ कि जिनके चेयरमैन प्रेरणा पीठ के हमारे आदरणीय श्री एस जौहल हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है और उनके ही समाज में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेन उद्देश्य जो है हमारा सबका एक ही है कि बच्चों के माध्यम से हम सुंदर समाज का निर्माण कर सकें। यही हमारा लक्ष्य है। बस यही है।
तो आजकल देख रहे हैं कि समाज में जैसे कहा जा रहा है सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के थ्रू बच्चे कहीं ना कहीं जो यूथ है खास करके वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रह रहा है, ज़्यादा कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज़ ना सीख कर वो उन चीज़ों के पीछे भाग रहा है, दिखावे की दुनिया में भाग रहा है। तो ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे और प्रेरणा पीठ ऐसे बच्चों के लिए क्या कर रही है? पहले तो ये इसमें माँ बाप का ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों की ओर ध्यान दे, जो उनके पास वो ये कहकर छुटकारा डालते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। और जो बच्चा अगर कुछ करना भी चाहता है, ठीक है, तो उसको सही जो दिशा देने की ज़रूरत है वो उनको नहीं मिल रही है। माँ बाप यही कहते हैं कि हाँ, अगर कोई काम कर रहा है बच्चा या नहीं कर रहा है तो उसके हाथ में, छोटा बच्चा भी है उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि हाँ वो बिज़ी रहे और हम अपना बिज़ी रहें। तो हाँ, ये कमी है। और हर बच्चे को भी और माँ बाप को भी रात को सोने से 10 मिनट पहले ज़रूर लगाने चाहिए कि आज दिन भर मैंने क्या अच्छे काम किए, क्या गलत काम किए, कितना टाइम मैंने मोबाइल देखा, कितना टाइम मैंने पढ़ाई की और कितना टाइम मैंने सोशल वर्क किया। जी, ठीक है, उस चीज़ की बहुत बड़ी कमी मुझे दिखाई देती है, जो कि आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अपना टाइम मैनेजमेंट और पढ़ाई के लिए भी, हर चीज़ के लिए रात को सोने से पहले 10 मिनट ज़रूर देने चाहिए। ये मैं ऐसा महसूस करता हूँ। थैंक यू सो मच। प्रेरणा पीठ के एक और सदस्य जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कुंवर रंजन जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं प्रेरणा पीठ के बारे में, उनकी क्या राय है, क्या देखते हैं बच्चों को जो ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जो भावी पीढ़ी को एक भावी पीढ़ी को बनाने का कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत। थैंक यू नलिनी। जी, क्या कहेंगे, क्योंकि एक प्रेरणा पीठ ऐसी पीठ है जो जिसने एक ऐसी सोच रखी कि हमने समाज को बनाना है, तो समाज को बनाने के लिए जो भावी पीढ़ी है उस पर काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व मैं कहूँगा, और कृतित्व भी उनका, पद्म विभूषण से सम्मानित हमारे चेयरमैन साहब एस जौहल जी, और उनकी प्रेरणा से ये संगठन चल रहा है। तो अपने आप में उनके व्यक्तित्व का अनुकरण करके भी, और ख़ासकर उनकी पुस्तक पढ़ने का मुझे मौका मिला, और पुस्तक का बहुत बड़ा भाग उनके बचपन का है। तो इनके बचपन को भी अगर देखा जाए, जो उनके 10 उनके अध्यापक ने मंत्र बताए थे जीवन में अमल करने के लिए, वो भी इस पुस्तक में रखा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लुधियाना के बहुत सारे विद्यालयों में वो रोज़ प्रार्थना से पहले उसको बच्चों में सुनाया जाता है, एक बच्चे सुनाते हैं, ऐसा प्रकल्प चल रहा है। तो ये मतलब एक बहुत ही बड़ा, और मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा उनका व्यक्तित्व है, हम भी थोड़ा सा उनकी छत्रछाया में कुछ बड़ा सोच सकते हैं कि लुधियाने से निकलकर पंजाब, देश और दुनिया तक ये जो मैसेज संदेश है प्रेरणा पीठ के माध्यम से बच्चों के बीच में। और बच्चे जो 7वीं और 8वीं का रखा गया है, रखा जाता है कि भाई 7वीं 8वीं के बच्चे क्यों, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, चूँकि एक मैं माइंड एक्सपर्ट भी हूँ थोड़ा सा, तो जो सबकॉन्शियस माइंड है 90% हमारे जीवन में उसकी बड़ी भूमिका होती है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। और वो एक्टिव होता है ये जो 14 से 15 साल की उम्र तक, 15-16 तक सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो वो पूरे जीवन में कहीं ना कहीं एक बार जो बचपन में जो चीज़ें बच्चों के अमल में आ जाए, बच्चों के जहन में आ जाए, वो पूरी ज़िंदगी अपना प्रभाव रखते हैं। तो इसी को देखकर 7वीं और 8वीं के बच्चों का चयन किया गया है और मोरल वैल्यू वहाँ पर दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो बच्चे देश के भविष्य हैं और विश्व की भी धरोहर हैं, एक नई दुनिया बनाने के लिए, एक नई विश्व की कल्पना करें, तो ये बच्चे ही हैं जो कल के लीडर हैं, रियल लीडर हैं। हमारे साथ हरकेश मित्तल जी भी मौजूद हैं जो कि प्रेरणा पीठ से अभी जुड़े हैं। क्या कहेंगे प्रेरणा पीठ के बारे में आप? मैं हरकेश मित्तल, प्रेरणा पीठ डॉक्टर जोहल जी, वरिंदर मित्तल जी, कन्वर जी, कमलेश गुप्ता जी, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ।